Hi everybody, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss on these topics. First, operations on set. So in this we will read on union and intersection. Okay. Next we have disjoint set, then intersecting set, then difference of set, next complement of set, and the last one symmetric difference of two sets. Okay. So let's start from operation on set. So here first we have definition of union. So the union of two sets A and B denoted by A union B. This is symbol for union. Okay. A union B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. तो फिलहाल अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन का मतलब समझते हैं. So union, the union of two sets A and B. So first we have to let two sets A and B. Suppose we have these two sets A and B. So the elements for the set A 3, 4, 5, 6 and the elements for set B 4, 6, 8 and 10. Okay. So we have to find A union B. So A union B will be what? The union of two set A and B denoted by this is the set of all those elements. तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ए और बी में वो आप सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करोगे ए यूनियन बी में. ओके. सो ए यूनियन विल बी व्हाट? 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Okay. Here after 6, 8 and 10. Okay. सो ये हमारे लिए यूनियन बनेगा. ए यूनियन बी आपका 3, 4, 5, 6, 8, 10. तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो ए में भी है और बी में भी है. तो ये आपका यूनियन बनेगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिपीटेशन मैटर नहीं करता है. ओके. रिपीटेशन डजंट मैटर हियर. चाहे आपके पास कितने भी एलिमेंट सेम हो, आप उन्हें एक ही बार यूज़ करेंगे यूनियन में. आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर यूनियन में हमने एक ही बार लिया है. ठीक है. तो रिपीटेशन डजंट मैटर. ओके. नाउ इफ वी प्रोसीड द डेफिनेशन देन इट सेज दैट विच आर all those elements, of course these elements which are either in A or in B or in both A B. तो आप देखेंगे कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी के, ठीक है, वो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे. आप देखेंगे 3 ए एलिमेंट में बिल्कुल, 4 ओके 3 इसमें है, 5 आपका इस सेट में है, 6 आपका इस सेट में भी है, 8 आपका इस सेट में, 10 इस सेट का. सेकेंड लाइन कही है और इन बोथ ए बी. तो बोथ ए बी का मतलब क्या है? 4 आपका इस सेट में भी है और इस सेट में भी. तो हो सकता है कुछ एलिमेंट या तो इस सेट में होंगे या तो इस सेट में या तो दोनों ही सेट में होंगे. ओके. तो ये आपका यूनियन है. नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन. सो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी. ओके. So here we have an example. A equals to 1, 3, 5, 7, 9. It means this set contain these elements. Okay. And B contain 2, 3, 5, 7, 11, 13. We have to find A intersection B. Okay. We have to find the intersection of these two. So definition says that intersection of the intersection of two set A and B, the intersection of two set A and B denoted by this. Okay. Denoted by this is the set of all elements which are common to both A and B. जो कॉमन है A and B में वही हमारा इंटरसेक्शन बनेगा. ठीक है. तो हम देखेंगे 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है. Then 3, yes 3. So we will write this 3 here for the intersection. Then 5 is also common in both these sets. Okay. Then 7, yes 7. Next 9. So we will not write the 9 one. Okay, because 9 is in set A but not in set B. So set the intersection of these two set will be 3, 5, 7. ठीक है. तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है इन दो सेट के लिए. तो ये आपका इंटरसेक्शन है. नेक्स्ट वी हैव डिसजॉइंट सेट्स. सो डिसजॉइंट सेट्स इज व्हाट? when two sets A and B are said to be disjoint if the intersection of these two set equals to 5. 5 मतलब nothing, it has no element. तो जब इनका इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों सेट में कुछ कॉमन ही ना हो तब वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज ए आपके पास है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है x इक्वल्स टू सच दैट x इक्वल्स टू 2n plus 1 where n is natural number
second set we have b equals to x such that x equals to 2n where n also natural number. Okay, then we have to find a intersection b. ओके अगर इस तरीके से पूछा गया आपसे तो सॉल्यूशन पहले हम सेट को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, सेट बिल्डर में गिवन है आपको. ओके नाउ एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n + 1, तो हम 1 by 1 n आपकी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो वी विल पुट ऑल नेचुरल नंबर 1 by 1 इन दिस इक्वेशन. ओके तो उसके बाद हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे. नाउ सी n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 1 = 2 + 1 3, तो x आपका 3 आया फर्स्ट एलिमेंट. नेक्स्ट 2 2 = 4 + 1 5, सेकेंड एलिमेंट 5, देन 3 पुट करेंगे, 2 3 = 6 + 1 7, देन 2 4 = 8 + 1 9. अब आप देख रहे हैं ये सारे ऑड नंबर बन रहे हैं, 3 5 देन 7 देन 9, तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं 11 देन 13 देन 15 और ये कंटिन्यूस रहेगा. ठीक है, इट हैज़ नो एंड. नाउ नेक्स्ट वन बी, यहाँ पे n आपके नेचुरल नंबर है तो हम 1 by 1 सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे. ओके सो 1 पुट करेंगे तो 2 1 = 2, देन 2 रखेंगे, 2 2 = 4, देन 3 2 3 = 6, देन 2 4 = 8. अब आप देख रहे हैं सारे इवन है, इवन नेचुरल नंबर है, तो मैं यहाँ पे 8 के बाद 10 रख सकती हूँ, उसके बाद ये कंटिन्यूस है. ओके नाउ हमसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी क्या. अब आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, ये आपके सारे इवन नंबर है, इवन नेचुरल, और ये आपके ऑड नेचुरल नंबर है, तो कभी कुछ कॉमन आएगा ही नहीं. ठीक है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप 5 लगाएंगे. सो इस टाइप का केस जहाँ पे इंटरसेक्शन आपका 5 के इक्वल आ जाए उस सेट को आप कहते हैं डिसजॉइंट सेट. ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव intersecting sets. So two sets A and B are said to be intersecting if A intersection B equals to 5 is not equals to 5, actually is not equals to 5. जब आपका A और B का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं होता है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, तो उस केस में आप उस सेट को आप क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट. एग्जाम्पल के लिए सपोज वी हैव A सेट 1 2, एलिमेंट्स 1 2 है, B सेट के पास हमारे पास 2 3 4 है. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या होगा, सी अगर हमें ये फाइंड करना है, सो A इंटरसेक्शन B विल बी 2. आप देख रहे हैं 2 हमारे पास है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है, ऐसा तो है नहीं कि एक भी एलिमेंट ना हो. एक भी एलिमेंट नहीं होता, 5 होता तो आपका डिसजॉइंट सेट होता, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट है, सो वी कैन से दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है. तो इस टाइप के सेट आपके इंटरसेक्टिंग होते हैं. अगर एक से ज़्यादा भी होता है तो भी आपके लिए इंटरसेक्टिंग होगा. ओके नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस ऑफ सेट. दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है डिफरेंस ऑफ सेट पूछने के लिए, एंड मैनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड इन दिस सेट. ओके सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस concept. Okay, difference of set. So for any sets A and B, okay, their difference A minus B is defined as A minus B equals to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. A minus B का मतलब है वो X आपके belong करना चाहिए A में, लेकिन वो B में नहीं होना चाहिए वो एलिमेंट. ठीक है, A और B, A माइनस B और B माइनस A दोनों में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि A माइनस B है या B माइनस A है, सेम है, डिफरेंस है, क्योंकि नहीं, A माइनस B अलग है, B माइनस A अलग है. ठीक है, एग्जाम्पल सी फॉर एग्जाम्पल suppose we have element A set 1 2 3 and 6 and B set 1 2 4 8. ओके सो A माइनस विल बी वॉट. अच्छा, अब हम देखेंगे 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछा है. ओके ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों कैंसिल हो गए. यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर नहीं है, तो 3 कैंसिल नहीं हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 6 है बट यहाँ पर भी 6 नहीं है. ठीक है, तो ये भी कैंसिल नहीं हुआ है. तो आपके सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट 1 और 2 जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल हुए हैं, बाकी ये दोनों आपके कैंसिल नहीं हुए. तो जो पहला सेट होगा, यहाँ पर जो पहला लिखा होगा A माइनस बी, उसके जो बचे हुए एलिमेंट है वही आपके A माइनस बी होंगे. आप
4 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जो पहले सेट लिखा हुआ है a माइनस बी में a पहले है, तो आप उसी के बचे हुए एलिमेंट्स a माइनस बी में लिखेंगे, ओके। सपोज वी हैव टू फाइंड b माइनस ए, ठीक है। तो b पहले है फिर a है, तो b, अब आपके पास कंडीशन कैसी है, b आप पहले लिखेंगे, a आप बाद में लिखेंगे। तो b के लिए 1 1 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, लेकिन 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप b के एलिमेंट्स लिखेंगे जो बचे हुए हैं 4 8, ओके। तो a माइनस बी कभी भी, इट विल नेवर बी इक्वल्स टू b माइनस ए, ठीक है। और दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। Next we have symmetric difference of two sets. So the symmetric difference of two set A and B is denoted by this symbol, okay, triangle shape में थोड़ा. So asymmetric difference of B is defined as asymmetric difference of B equals to A minus B union B minus A. अभी मैंने आपको बताया था A minus B और B minus A दोनों ही different आएंगे, तो इनका जो यूनियन होगा, ठीक है, जो इनका यूनियन होगा आप उन्हें लिखेंगे, तो वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा A और B का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास A है, A, B, C, D एंड B सेट है आपके पास B, D, F और G, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B. सो फॉर्मूला आपके पास है A माइनस बी यूनियन B माइनस A. तो पहले आप A माइनस बी फाइंड करेंगे, सो A माइनस बी विल बी वॉट, A यहाँ पर है, A यहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम लिखेंगे. B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, कैंसिल हो जाएगा. C यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो C भी यूज़ होगा. D यहाँ पर है, D यहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास A माइनस बी में सिर्फ यही एलिमेंट है. नेक्स्ट वी हैव B माइनस ए. अगर B पहले है और A बाद में है, तो B यहाँ पर है, कैंसिल होगा. देन D यहाँ पर है, कैंसिल होगा. F यहाँ पर नहीं है, तो आप F यूज़ करेंगे. G यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो आप G भी लिखेंगे, ओके. सो A माइनस बी और B माइनस ए का जो इंटरसेक्शन, जो यूनियन होता है, वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है A और B का. तो हम देखेंगे यहाँ पर AC है यूनियन FG. तो यूनियन का मतलब क्या है, सबको एक यूनाइट करके चलना है, ठीक है ना, सबको साथ लेके चलना है, ऐड नहीं करना है या अलग नहीं करना है, ठीक है. तो A है तो आप A लिखेंगे, C है C लिखेंगे, इस सेट में F है F लिखेंगे, और G है. जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं, दोनों सेट में सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप उसे एक बार लिखेंगे. लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो आप सबको इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, ओके. सो A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B इज दिस, ओके. नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है. So definition is let U be the universal set and A is subset of U. अगर कोई U यूनिवर्सल सेट है और A जो है वो सबसेट है U का, ठीक है ना, मतलब इसके पास जो A के पास जो भी एलिमेंट्स है वो इसमें है, ओके, ये सबसेट है इसका. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड बाय दिस और U माइनस A. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर आप पूरे यूनिवर्सल में से A सेट को हटा देंगे, एलिमेंट्स जो होंगे A सेट के वो हटा देंगे, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा, ओके. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट्स है हमारे यूनिवर्सल सेट में. एंड A हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, ओके, सॉरी 6 8 अलग अलग है, ओके, डिफरेंट है 6 8. तो हमें अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है A सेट का, तो हमें माइनस करना पड़ेगा U माइनस A, तभी वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. तो हमें ये हटाने हैं, ठीक है ना. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से A मतलब 2 4 6 8 हटाने. तो अभी हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था, ठीक है. तो हम देखेंगे 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट में. 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो गए. 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 यूज़ करेंगे. 4 कैंसिल हो जाएंगे, 5 नहीं है, 5 लिखेंगे. 6 कैंसिल हो जाएंगे, 7 नहीं है, 7 लिखेंगे, और 8 भी कैंसिल हो गया. तो ये एलिमेंट्स हैं जो आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में आएंगे,
ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्सल में से ए हटा दें, सपोज़ ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये एक कंप्लीट सेट है यूनिवर्सल जिसमें आपका ए सेट ये है, तो जब पूरे में से इस सर्कल को हटा दिया जाएगा तो ये जो आपके पास बचेगा ना, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये जो 1357 है वो यहाँ पर है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए। ओके, सो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो आप यूनिवर्सल से उसको माइनस कर देंगे, सिर्फ उस सेट को, ठीक है। तो यू कोई सेट है, तो अगर हमें यू आपका यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप अगर यू में से, मैं यहाँ पे रीज़न बता रही हूँ, अगर आप यू में से सिर्फ यू को हटा देंगे तो आपके पास 0 बचता है, 0 मतलब 5, ठीक है। तो 5 आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो u का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट वी हैव 5 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 5 जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढना होता है हम यूनिवर्सल से माइनस करते हैं, तो यूनिवर्सल -5 इक्वल्स टू अगेन यूनिवर्सल, तो 5 जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, तो पहले सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल से माइनस करना पड़ेगा ए को, तो हम जो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमको ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है यूनिवर्सल से, तो क्योंकि हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल से अगर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिर से ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले, तो हम यूनिवर्सल से ए हटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें ए कॉम्प्लीमेंट को भी माइनस करना है यूनिवर्सल, क्योंकि उसका भी कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल से अगर हम इसको हटा देंगे तो हमें वापस ए मिल जाएगा। ओके, तो आई एम राइटिंग हियर ए। नेक्स्ट वी हैव ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या था, यूनिवर्सल से अगर हम ए हटा दें तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके ओके, नेक्स्ट इसे एक डायग्राम से समझते हैं। ओके, ये एक डायग्राम है, सपोज़ ये हमारे पास ए सेट है जिस पे 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, और जो ये बाकी का पोर्शन है इस पे 3 और 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यूनिवर्सल माइनस ए, तो पूरे में से अगर मैं 1 2 हटा दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए लिखा है, तो ए हमारा ए कितना था, ये तो ए कॉम्प्लीमेंट है, और ए हमारे पास कितना है 1 2, और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूँ तो 1 2 और 3 4 दोनों का इंटरसेक्शन मिला के 1 2 3 4 आएगा, जो आपका क्या है, यूनिवर्सल। तो इन दोनों का सेट का आपका यूनियन यूनिवर्सल होगा। नेक्स्ट हमारे पास ए है, सपोज ए यही सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट अभी बताया आपको 3 4 आएगा, तो अगर 3 4 है और यहाँ पे 1 2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स एक भी नहीं है दोनों में, तो ये 5 के इक्वल है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे हमारे। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।